Namaskar, ma'am. Let me begin by offering my profound gratitude to Anju, ma'am, for giving this opportunity to us to speak to children. And we'll first begin with a little Mangala Charan because we're embarking on a new journey. Can we play the shlok, please? हे प्रभु, तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को, वेद सब गाते तुम्हें है, कीजिए धन वृष्टि को. Thank you, Lavi ma'am. So, my dear parents, you are at crossroads now. You are just facing a division of roads where there is a choice to be made. There happens three languages. Three languages are taught in middle section, and we offer two languages more apart from Hindi. And they are Sanskrit and German. You will think that this is a simple choice to be made. Ma'am, why are you taking a session about it? So here it is. We have to think a lot and decide because our decision is going to impact the coming 3 years and even for the future also. So here am I to begin my presentation with my team of teachers. But before I start, I'll request Kavita ma'am, can we post the link of the two menti.com polls? आपके क्लास ग्रुप में आ रहा है और अगर आपके पास अपने फोन्स हों तो कृपया स्लाइड दिखाएंगे लवी मैम menti.com की ताकि हमारे मित्र जो हैं उस पर जा सके. आप या तो सीधा लिंक पे क्लिक कर लीजिए, वहां एक प्रश्न है और ज्वाइन अ प्रेजेंटेशन करने के लिए कोड आपसे मांगा जाएगा जिसका कोड है 4681064. हमारे टीचर्स भी पार्टिसिपेट करें, आप सभी पेरेंट्स भी हैं, अभिभावक भी हैं और ये कोड भी जाने पर आपके सामने एक प्रश्न आएगा और ये प्रश्न बड़ा सिंपल सा है और ये प्रश्न है विच शुड बी ऑन द टॉप ऑफ आवर लिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर चाइल्ड्स लाइफ. हमारे बच्चे के ग्रोथ ईयर्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए वो आपको देना है. यहाँ पे आपके पास चॉइसेस हैं और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने की अनुमति ले रही हूँ आपसे ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इस पोल के रिजल्ट क्या आ रहे हैं. आप भी देखना चाहेंगे और हर एक का मत अपना हो सकता है. और ये देखिए आपकी आंखों के सामने, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? मैम जी मैम अभी ठीक है. Lavi ma'am, please share the code again. I'm writing in the chat box. Is my screen visible, Lavi ma'am? Not ma'am. नहीं मैम Fine. I'll just do that again. Students, I request you to kindly keep muted. We will share the Please, It is a simple class question 5. that we have. keep Class yourself 5. muted. Please mute yourself. Thank you. Is it visible now? Yes, ma'am. Thank Yes, you ma'am. so much. So the question was, which should be on the top of our list in the development of our child's life? और इसमें options आपके पास 4 हैं. Performing arts, achievements in the scholastic domain, we've got 17% votes there, 16 now. Character building is one option and then physical activities like sports. और जैसे जैसे आप लोग अपने वोट्स डाल रहे हैं ये बार ग्राफ अपने आप चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं. We have had 68% or 69% people voting for character building. Wonderful. Thank you so much. Thank you for that voice. I really loved it. Okay. And Yes. then I'm also going to share another question with you. और ये क्वेश्चन आपके समक्ष आ रहा है, लिंक आपके पास आ चुका होना चाहिए और इस बार का प्रश्न डिफरेंट है. What is more important for the character building? क्योंकि आपने character building को अधिक वोट दिए.
कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स, डीपली इंग्रेन्ड संस्कार, हाई ग्रेड्स या सर्टिफिकेशन इन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। आपके वोट्स की उम्मीद है और यहाँ 88% पे हमारा पहला ऑप्शन पहुंच चुका है, विच सेज डीपली इंग्रेन्ड संस्कार, and some are voting for communication skills also. I respect that. High grades, I respect that. So more are voting, I'm sure. Voting, 53 people have voted, 55 now. We are more than 100, I think. More can vote. 62 people have voted, thank you. 66 now. Wow. Still votes are coming for the first option only. Thank you. 70 people have voted. You can keep on voting. Meanwhile, I'll bring you back into the session, because the first option is a clear winner. And on that note, I'll stop sharing the screen because the case is established. Right? Are we back into the meeting? Yeah? So, हमारा बहुत धन्यवाद। आपने दोनों पोल्स में बड़ा भागीदारी बहुत अच्छे से की। तो देखिए, आपने कहा कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ कोर्स इज ऑन द टॉप प्रायोरिटी, और कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए संस्कारों का होना बहुत आवश्यक है, और जिसके लिए संस्कार बहुत महत्व रखते हैं उसके लिए संस्कृत को बहुत महत्व रखना है, क्योंकि संस्कारों की जन्मभूमि सिर्फ और सिर्फ एक भाषा है जो है संस्कृत। और मैं आपसे, आप कहेंगे कि मैम आप हेडमिस्ट्रेस होके एक ही भाषा के लिए क्यों बोल रहे हैं, मैं आपसे जर्मन के लिए भी वार्तालाप करूंगी, मगर मुझे ये ध्यान रखना है कि अगर चरित्र निर्माण, दैट इज कैरेक्टर बिल्डिंग, इज ऑन द टॉप प्रायोरिटी, sanskars are on top priority, then we need to know a language which actually is offering to the entire world, which you're going to see in the presentation to come. और ये एक बड़ी आयरॉनिकल बात है, एक विडंबना है कि संस्कृत को अपनी ही भूमि में अपने लिए छात्र लेने के लिए एक सेशन देना पड़ रहा है, जैसे राम को अपनी ही जन्मभूमि में मंदिर के लिए कहना पड़ रहा है। लेकिन आपको आज ये कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके सामने हम लाना चाहते हैं, और आप देखिए कि हम सभी चाहते हैं हमारे बच्चे बड़े सुंदर विद्यार्थी बने। काकचेष्टा भगो ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। हमारे बच्चों में 5 लक्षण होने चाहिए, तो वे जैसी चेष्टा भी हो, वक्त जैसा ध्यान भी हो, श्वान जैसी निद्रा भी हो, अल्पाहारी भी हो, गृह त्यागी भी हो, और अपनी पढ़ाई में वो सब हासिल करे जो उसको जीवन में सुख और धर्म की प्राप्ति दे सके। So here I am to, give you a presentation with my team. On that note, I'll request Nirupma ma'am to come forward and share with you certain slides, which will actually give you a wider option, because there are many aspects of Sanskrit which we are not aware of. और इस समय जबकि Western all the countries are turning to India for the great knowledge which is contained in the Sanskrit scriptures and texts, why not our own children study the same language with the same vigor? This is the basic thought that we are here for, right? And even Max Muller, who has translated the 4 Vedas for the entire European countries, studied Sanskrit, though he could never visit India, right? So here I invite Nirupma ji, pranam, Nirupma ji कृपया आएं और अपनी स्क्रीन शेयर करके या अपनी प्रेजेंटेशन को आरंभ करें हमारे माननीय अभिभावकों के लिए और हमारे प्रिय छात्रों के लिए। जी लवी मैम, नमस्कार सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, अभिवादन। सभी प्यारे बच्चों को और उनके अभिभावकों को सादर प्रणाम। संस्कृत देव भाषा है, हमारा सम्मान है, हमारा अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है। लवी मैम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कैमरा इज ऑफ। निरुपमा मैम योर कैमरा इज ऑफ। मैम मेरा कैमरा ऑन है। लवी मैम मैं आपको दिखाई दे रही हूँ। हाँ आप आगे बढ़े, कोई बात नहीं, हमारे सामने प्रेजेंटेशन चल रही है, आगे बढ़िए। जी, संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है, तो आइए सुनते हैं हम अपने ही गुरुजनों के विचार कि वो अपने विचारों में हमें क्या बताना चाहते हैं। अग्रे लवी मैम वीडियो चला दीजिए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै।
तमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। आप सभी लोगों के सामने संस्कृत भाषा के बारे में कुछ कहते हुए मुझे अत्यंत ही गर्व का अनुभव हो रहा है। संस्कृत भाषा का अध्ययन मैंने अपने बचपन में बहुत थोड़े दिनों के लिए किया। संस्कृत के श्लोक, सुभाषितानि, संस्कृत की छोटी छोटी कथाएं, हमारे संस्कृत के गुरुजी, उनके पढ़ाने का तरीका, उनके द्वारा धातु, रूप, संधि, विच्छेद, ये सारी अब मेरी स्मृति का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। जब मैं अध्यापक बना तो मैं विज्ञान का अध्यापक होने के नाते संस्कृत से थोड़ा दूर हो गया, लेकिन जब मुझे सौभाग्य मिला कि मैं विद्यालयों का नेतृत्व करूं, तो फिर से एक बार मुझे मौका मिला कि संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कृत भाषा में रुचि पैदा करने के लिए मैं अपने विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ कुछ कर सकूं। अल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल में ऐसे बहुत सारे प्रयास किए गए जिसमें संस्कृत भाषा के प्रति बच्चों में बहुत बड़ी रुचि, प्यार और उसे सीखने का एक उत्साह पैदा किया जा सके। इसमें हमारे अध्यापकों ने मेरा बहुत साथ दिया। संस्कृत भाषा का जो इतिहास है, उसका अपना जो गौरव है, उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम। और मैं तो ये समझता हूँ कि उसके बारे में सब कुछ कहने के लिए मेरे अंदर उतनी योग्यता भी नहीं है। ये आज के समय में थोड़े दुख की बात है कि संस्कृत के इतने गौरवशाली इतिहास होने के बावजूद संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत का मन मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ता है, मेडिकल साइंस में संस्कृत का क्या महत्व है, और अपने आप में ये जो हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है उसका बड़ा महत्व है। फिर भी संस्कृत के प्रति जो हमारा रुझान है वो कुछ कम हुआ है। उसके कारणों में तो मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतना अवश्य बताना चाहूंगा कि दुनिया के कई विद्यालयों में और ढेर सारे विश्वविद्यालयों में संस्कृत को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो ह्यूमन राइट्स का चार्टर है उसका संस्कृत में अनुवाद हुआ। यूनेस्को ने तो वैदिक मंत्रों के उच्चारण को एक अदृश्य सांस्कृतिक, मानवता के सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखने का प्रयास किया है। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिससे हमें ये संबल मिलता है, हमें ये गर्व होता है कि संस्कृत भाषा का क्या महत्व है। मेरी ये उम्मीद है, मैं लोगों से ये अपील भी करता हूँ, अध्यापकों से, अभिभावकों से, बच्चों से, कि इस भाषा को एक नए नजरिए से देखने का प्रयास करें। अगर आप वैज्ञानिक भी बनना चाहते हैं तो नासा का उदाहरण लीजिए, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कंप्यूटर के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, विज्ञान की नए नए शोधों के लिए संस्कृत भाषा बड़ी ही उपयुक्त है। लगभग 60,000 से ज्यादा संस्कृत की पांडुलिपियों का वो अध्ययन कर रहे हैं और उसे वो अनुवादित कर रहे हैं। संस्कृत के महत्व को बताने के लिए इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। तो एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को आपके प्रयासों के लिए बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि संस्कृत के उत्थान के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए आपके सारे प्रयास सफल हों। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कारम। जैसे कि आज हम चर्चा कर रहे हैं संस्कृत के अपने जीवन में महत्व की, तो हम सभी को मालूम है कि वर्ड संस्कृत से ज्यादा जरूरी उसको समझना हमारे लिए है संस्कृति। संस्कृति एक जीवन शैली है, और आज जहां एक तरफ हम बात करते हैं कि इतना साइंटिफिक एडवांसमेंट हुआ है, इतनी तरक्की हुई है, इन सभी चीजों के पीछे एक जो लॉजिक है, अगर आप कंप्यूटर्स जिस पर हम इतना निर्भर करते हैं और हमारी लाइफस्टाइल उस पर इतना निर्भर करती है, उसकी लॉजिक को अगर आप समझना चाहेंगे तो पूरा विश्व इस बात को मानता है कि उस लॉजिक में, उस साइंटिफिक डेवलपमेंट में एक संस्कृत भाषा ऐसी रही है कि जिसने योगदान दिया है। हमारे लिए जरूरी है कि जिस तरह से भारत विश्व में अपना स्थान बना रहा
स्टूडेंट बता सकता हूँ, क्योंकि जब मुझे लाइफ में डिसाइड करना था कि हिंदी भाषा को चुनना है या संस्कृत को चुनना है, तो मैंने संस्कृत चुना। और मैंने ये देखा अपनी लाइफ में अनुभव के साथ कि मेरी जो कमांड रही वो तीनों लैंग्वेजेस पे अच्छी रही। और मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत भाषा पढ़ने से एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आए, और मार्क्स के साथ साथ जब मैं बातचीत करता हूं किसी से भी, पर्टिकुलरली उन लोगों से जो इस भाषा के बारे में जानते हैं, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मुझे ये भी लगता है कि संस्कृत भाषा पढ़ने से हमारा अपनी जो वैल्यू सिस्टम है, जो संस्कृति है, उससे भी हम जुड़े रहते हैं। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूं अपनी लाइफ में जिन्होंने संस्कृत की पढ़ाई करके वो बहुत ज्यादा टॉप पोजीशंस पे पहुंचे लाइफ में। सो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि अगर आप इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं तो आई थिंक आप ये सोच सकते हैं कि संस्कृत भाषा भी किसी भाषा से कम नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा वो नंबर 1 भाषा है अगर हमें भाषा का चयन करना है। धन्यवाद। I'm sorry the voice was not clear. I'll get the video sent for the class groups. Nirupa ma'am, you can proceed. जी मैम, लव यू मैम। लव यू मैम, स्लाइड प्लीज। Excuse me, ma'am. जी मैम। तो बेटा अभी मैं आपको बताना चाहूंगी, लवी मैम पीछे वाली स्लाइड मैम, धन्यवाद। तो बेटा ये हमें एक वृक्ष दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपने हमारी पहली स्लाइड में मंगलाचरण सुना था। बेटा ये हम लोगों की संस्कृति रही है कि किसी भी कार्य का प्रारंभ हमेशा ईश स्तुति के द्वारा किया जाता है। उसके पीछे हम लोगों का क्या उद्देश्य है कि हे ईश्वर, हम जिस भी शुभ कार्य का प्रारंभ कर रहे हैं वह निर्विघ्न समाप्त हो सके और हम अपने कार्य को अच्छे से समाप्त कर सके। तो इसलिए हमने जब ये कार्यक्रम शुरू किया तो मैम से पहले, सुनीता राजी महोदया जी से पहले आपने मंगलाचरण सुना। अब आपके सामने की वृक्ष दिखाई दे रहा है। अब आप इस वृक्ष को देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से, आपको ये समझ में आएगा भी बेटा कि आप एक तरफ देख रहे हो हरियाली है और एक तरफ वो वृक्ष पूरा सूख गया है। अब इसके पीछे क्या औचित्य है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जब तक वो पेड़ अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, अपने नैतिक मूल्यों से जुड़ा रहा, वह बहुत सुंदर, आकर्षक, भरा पूरा लग रहा है। और जैसे ही उस वृक्ष ने अपनी जड़ों को छोड़ दिया, अपनी रूट्स का त्याग कर दिया, तब वह सूख गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम अपने आप को जीवन में एक बड़े मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम अपनी संस्कृति के बिना वहां तक पहुंचने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। कुछ दूर हम चल पाएंगे, लेकिन जैसे आपने देखा कि जड़ से वो जुड़ा रहा तो पूरे लॉन्ग लाइफ तक वो हरा भरा रहा, जीवन पर्यंत। लेकिन जहां उसने जड़ों को छोड़ दिया, कुछ टाइम बाद वो सूखा हो गया। अग्रे लवी मैम, अग्रे। तो अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी 16 संस्कार, जो हमारे समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार हैं। और इन्हें जानना, इन्हें समझना, इनकी क्या विशेषता है, हर भारतीय के लिए बहुत जरूरी है। और वो भी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए तो ये धरोहर है। तो जिस तरह माता पिता अपनी धरोहर बच्चों को समर्पित करते हैं कि इसको और आगे बढ़ाना, तो वही हमारा भी उद्देश्य है कि जीवन में बच्चे इन संस्कारों के साथ, इस दृढ़ता के साथ अपना परचम देश से दूर विश्व में लहराएं। तो ये जो बेटा हमारे 16 संस्कार हैं, जन्म से लेकर, यानी जब बच्चा पैदा होता है, जब वो स्कूल जाता है, जब वो पहली बार अन्न को धारण करता है, अन्नप्राशन संस्कार जिसे कहते हैं, गर्भाधान, जब माता गर्भ में शिशु को धारण करती है, जो कि सबसे मुख्य हमारा संस्कार माना जाता है। और ऐसे अनेक एग्जाम्पल है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी थोड़ा सा समय को लेते हुए, कि जब अभिमन्यु माता के गर्भ में था, उसी समय उसने चक्र में प्रवेश करना सीख लिया। लेकिन जब माता सो गई तो वह चक्र से बाहर निकलने की बात नहीं सुन पाया। तो यानी कि जब माता गर्भ में धारण करती है तो एक माता के लिए बहुत जरूरी है कि वो ऐसे संस्कार बच्चे के अंदर पल्लवित करे, ऐसे ग्रंथ पढ़े कि बच्चे में वो संस्कार आए।
तो हमें ये 16 संस्कार यदि सीखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे, तो वो केवल संस्कृत भाषा में ही है। अग्रे मैम, अग्रे महोदया। उच्चारण, कोई भी भाषा तब तक अपने आप में पारंगत नहीं हो सकती, हम उसमें निपुणता हासिल नहीं कर सकते जब तक कि हमारा उच्चारण स्पष्ट ना हो। और उच्चारण के लिए संस्कृत और हिंदी में तो विशेष स्थान है। यदि आपका उच्चारण स्पष्ट होगा तो आप लिखेंगे भी सही और उसको पढ़ेंगे भी सही। तो ये 2 उदाहरण आपको दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण, कृष्ण का था आकर्षित करना, भगवान कृष्ण, और कृष्णा अर्थात द्रौपदी। केवल दीर्घ आ और छोटे आ से आप देखिए परिवर्तन कितना हुआ। एक कृष्ण को सूचित कर रहे हैं जो कि पुल्लिंग है, और एक आ की मात्रा लगने से द्रौपदी अर्थात जो स्त्रीलिंग है, फीमेल है। अग्रे, शब्दों का क्रम, ये संस्कृत की बहुत ही बड़ी खूबसूरती है और विशेषता है। इसमें शब्दों के क्रम में बेटा आप कोई शब्द कहीं भी लिख दीजिए आगे पीछे, इसका अर्थ परिवर्तित नहीं होता। और ये खूबसूरती और ये विशेषता आपको विश्व की किसी भी भाषा में ना देखने को, ना सुनने को, ना समझने को मिलेगी। इसी विशेषता के कारण नासा ने जो 250 अर्थात 250 लैंग्वेज पर एक निरीक्षण किया, सर्वे किया, और ये पाया कि सबसे वैज्ञानिक भाषा हमारी संस्कृत भाषा है। केवल यही एक भाषा है जिसके द्वारा हम स्पेस में यदि मैसेज भेजते हैं, समाचार भेजते हैं, तो उसका वैदिक क्रम परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उसका अर्थ हम समझ सकते हैं। तो नासा ने इस सर्वेक्षण के द्वारा संस्कृत को प्रथम साइंटिफिक लैंग्वेज, वैज्ञानिक भाषा का नाम देते हुए प्रथम स्थान इसको दिया है। अग्रे लवी मैम। जैसा कि हम सब स्वीकारते हैं और हम सब जानते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत ने आज तक, प्राचीन काल से यदि हम आज तक की बात करें, आधुनिक युग तक की, तो हमेशा कुछ न कुछ दिया है, और देने वाला हमेशा धनी होता है और हमेशा ही बड़ा होता है। तो संस्कृत ने कौन से शब्द अंग्रेजी को दिए, अंग्रेजी ने कौन से शब्द एडॉप्ट किए संस्कृत भाषा से? तो जैसे भ्रातृ हम संस्कृत में कहते हैं, और हम इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर, मातृ मदर। तो ऐसे शब्दों की सूची है नव, न्यू, तरु, ट्री। तो ये शब्द है जो अंग्रेजी भाषा ने संस्कृत से लिए हैं, उससे अपनाए हैं। अग्रे मैम, अग्रे। अब हम चलते हैं पाणिनि की तरफ। पाणिनि का नाम शायद आप लोगों ने अभी ना सुना हो, लेकिन बच्चों ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि विश्व का पहला व्याकरण जो लिखा गया, उसका जो उद्भव किया गया, जिन्हें भाषा विज्ञान का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है, वे पाणिनि है। पाणिनि ने ही पहले व्याकरण की रचना की, और उन्होंने जो सूत्र दिए, व्याकरण के जो सूत्र दिए, उनको हम माहेश्वर सूत्र, अर्थात ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के डमरू से वो ध्वनियां निकली, और वो ही पाणिनि का व्याकरण सूत्र कहा जाता है। और ये ऐसा इन्होंने व्याकरण दिया दुनिया पुरातन काल से अभी तक कि हमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये जो कि इनकी वैज्ञानिकता को, शुद्धता को दर्शाता है कि प्राचीन काल से लिखी हुई बात हमें आज तक परिवर्तित नहीं करनी पड़ी। अग्रे, नृत्य। आप कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए बच्चे संस्कृत में, आप जीवन का कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, चाहे दार्शनिकता उठा लीजिए, चाहे विज्ञान, गणित, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, इवन अर्थशास्त्र, कोई भी एक अछूता विषय ऐसा नहीं है जो संस्कृत में पहले उसका प्रादुर्भाव ना हुआ हो, अर्थात उसकी उत्पत्ति ना की गई हो। तो ये जैसे आपको नृत्य दिखाई दे रहा है, जो नृत्य की रचना, जो किताब लिखी गई, पुस्तक का उद्भव किया गया, वो भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम किया गया। तो जो बच्चे क्लासिकल अपना ये भारतीय संस्कृति का नृत्य सीखते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है कि वो इन मुद्राओं को पहचाने। इन मुद्राओं का विस्तृत वर्णन भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र पुस्तक में किया गया कि कैसे नेत्र संचालन, आंखें कैसे चलाई जाती हैं, हाथों की मुद्रा क्या होती है, पैरों को चलाना क्या है। तो यदि इसमें आप गहराई में जानना चाहेंगे तो आपको संस्कृत पर आश्रित रहना ही होगा। अग्रे,
संस्कृत का हर क्षेत्र में बहुत योगदान रहा है, लेकिन समय की कमी को देखते हुए हम उसका इतना विस्तार से नहीं बता सकते बच्चे। तो मैं इतना बताना चाहूंगी आपको, तो आज के समय में हर कोई योग को जानता है। योग जिसको आप योगा कहते हैं, आधुनिक भाषा में इसका नाम योगा आप कहते हैं, पर वास्तविक नाम इसका योग है। और योग का यदि हम नाम लें तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है और एक ही व्यक्ति की छवि आती है, रामदेव जी की, जिसमें कि जो योग है वो पतंजलि, हमारे संस्कृत के एक ऋषि हुए हैं पतंजलि, जिनके द्वारा योग शास्त्र लिखा गया, अर्थात पूरा ग्रंथ लिख दिया उन्होंने योग के ऊपर। रामदेव जी ने तो 2-4 सूत्र लेकर ही उसका इतना उनका नाम हो गया कि पूरे विश्व में छा गए। और सोचिए यदि आप पतंजलि का योग शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो आप अपने आप को विश्व के किस पटल पर स्थापित मानेंगे। इसी तरह बोधायन आचार्य का आप नाम देख रहे हैं और आप सोचेंगे कि बोधायन आचार्य कौन है, लेकिन यदि आप गणित पढ़ते हैं, शायद आप लोगों ने गणित में पढ़ लिया होगा, पाइथागोरस। जो पाइथागोरस जिसको हम जानते हैं वो एक किताब है शुल्ब सूत्र, जो कि बोधायन आचार्य के द्वारा बहुत समय पहले लिख दी गई, लेकिन हमारी जो आधुनिक पीढ़ी है वो जानती है पाइथागोरस को, उनके नाम को जानती है, उन्हीं के नाम को पहचानती है। बोधायन आचार्य का नाम हम नहीं जानते, क्योंकि जो असली में रचयिता है उसको तो हम भूल चुके हैं। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, सुश्रुत द्वारा विरचित सुश्रुत संहिता। सुश्रुत क्या है बेटा? आपके एक लेखक हुए हैं, संस्कृत के कवि हुए हैं, जिन्होंने किताब लिखी सुश्रुत। और इसमें क्या है जिसको आज आप कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी। तो प्लास्टिक सर्जरी का बहुत पहले ही प्रादुर्भाव संस्कृत ग्रंथों में सुश्रुत जी के द्वारा कर दिया गया था। और शून्य का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट को तो खैर आज बच्चा बच्चा जानता है, और ये बहुत गर्व का विषय है कि शून्य का जो आविष्कार किया वो हमारे आर्यभट्ट ने किया। अग्रे मैम, अग्रे। संस्कृत का भविष्य। हम मानव है, हर मानव का एक स्वभाव है कि यदि आज हम कुछ भी कर रहे हैं तो क्या हम भविष्य में अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं परिणाम आगे बहुत अच्छा ही होगा? तो ये एक मानव का स्वभाव है कि हर कोई अपने भविष्य के विषय में चिंतित रहता है। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप एक संस्कृत के छात्र बनते हैं और संस्कृत में पारंगतता हासिल करते हैं, निपुणता हासिल करते हैं, तो आपको ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचने वाली ऐसी कोई ताकत नहीं बनी अभी तक विश्व में जो आपको रोक पाए। पूरे संसार में, पूरे विश्व में 35 यानी कि 35 देशों में संस्कृत का अध्यापन हो रहा है, किया जा रहा है। कंप्यूटर विज्ञान, यदि आप कंप्यूटर के फील्ड में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो जो हमारा सुपर कंप्यूटर 21st सेंचुरी 21वीं सदी का बन रहा है, तो जो उसका सॉफ्टवेयर है वो पूरा संस्कृत की लिपि पर ही आधारित है। तो वहां पे आपको यदि कंप्यूटर में कोई मास्टरी हासिल करनी है तो संस्कृत ही आपका एकमात्र सहारा के लिए या आपको आगे बढ़ाने वाली चीज है। इसके बाद मैं थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगी, NEP, जिसको आप हिंदी में कहते हैं नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बच्चों के विकास के लिए, बच्चों हर तरीके से अपने आप में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आगे बढ़े, उसके लिए जो नई शिक्षा नीति हमारी बनी है 34 वर्षों के बाद, उसमें संस्कृत को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, ताकि हमारे देश के बच्चे बहुत एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो जो नई शिक्षा नीति है इसमें संस्कृत को विज्ञान से, साइंस से और आपके मैथ से, सब चीजों के विषय से जोड़ के आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आप हर विषय में संस्कृत को पाएं। और ये संस्कृत की एक गौरवमय बात है, मैं आपको कहूंगी, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड ने संस्कृत को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। इसके पीछे क्या औचित्य था? क्योंकि वो संस्कृत की महिमा और संस्कृत की गरिमा को भली भांति जान चुके हैं, इसलिए उन्होंने उसको आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। अग्रे। तो अब मैं अपनी सखी वंदना जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आगे मन संचालन करें और हमारे बच्चों को जागरूक करें। धन्यवाद निरुपमा, सभी का अभिवादन करती हूँ मैं। अब मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ। हमारा विद्यालय हमेशा से ही छात्रों के नैतिक विकास एवं उनके चहुमुखी विकास के लिए हमेशा से ही अग्रसर रहा है। विद्यार्थियों के इस विकास को अनेक कड़ियों में पिरोया है, जैसे नई तकनीकी के द्वारा पठन पाठन पर बल दिया जाता है,
संस्कृत में विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं मतलब खेल करवाए जाते हैं। संस्कृत गीत, नृत्य, पॉडकास्ट, फ्लटरगन, पीपीटी आदि के माध्यम से छात्रों को सरलतापूर्वक संस्कृत का अध्ययन करवाया जाता है ताकि वो इस भाषा को सहजता और सरलता के साथ ग्रहण कर सकें। इसके लिए समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है। संस्कृत दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और हम उसमें विद्वान जनों को आमंत्रित करते हैं ताकि वे हमारे विद्यार्थियों का अपने ज्ञान के द्वारा मार्गदर्शन कर सकें। तो आइए देखते हैं इसकी एक झलक। वीडियो सलूजा जी का है यहाँ। रवि मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। Ma'am, 1 second. And ma'am, voice is echoing. कथम संस्कृतेन वदन्ति। और मैंने एक छोटी सी बात कह दी। यदा वयं भ्रमामः स्म, आपके स्कूल में घूम रहे थे, तत्र भित्तिषु दीवारों पर कुछ चित्र लगे हुए थे, वर्णनम् आसीत्। मैंने कहा ये अंग्रेजी में है, संस्कृत में भी होने चाहिए। अग्रिवारं दृष्टवान आंग्ल भाषया अपि चित्राणि आसन वर्णनम् आसीत् संस्कृतेन अपि आसीत्। इसे कहते हैं बच्चे कितना तैयार हो जाते कार्य करने के लिए। इसलिए नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई है। यद्यपि पार्लियामेंट मध्ये भविष्यति तत्पश्चात् नीति आगमिष्यति कानिचित् परिवर्तनानि भविष्यन्ति। कुछ परिवर्तन है और ये शिक्षा नीति केवल शिक्षा नीति नहीं है। आप लोगों का क्या भविष्य देखा गया है। ते बालान कथम पश्यन्ति श्वः बालः केन रूपेण। कल ये बच्चे किस रूप में हमारे सामने आएंगे, इसकी चर्चा है। लेकिन अद्भुत बात तब मुझे अच्छी लगी और मैंने उस पर लिखकर कई स्थानों पर कहा भी, उस शिक्षा नीति का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, तस्या नीते यत् दर्शनम अस्ति यत् तस्य यत् फिलॉसफी अस्ति। वहां पहला वाक्य क्या था? प्रथमं वाक्यम के मासी तद्दृष्ट्वा मम प्रसन्नता अभवत्। वहां लिखा था बच्चों के अंदर जो ऊर्जा समाई हुई है, बच्चों के भीतर जो शक्ति है, उसे पहचानना, उसे अवसर देना, to recognize the energy within the children, to give chance to flourish, elevate. उन्हें उस प्रकार के कार्यों में लगाकर एक ऐसा रूप देना जिसे कहते हैं संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। आज हम कहते हैं सिद्धांत तो है, व्यवहार नहीं है। और संस्कृत कहता है ज्ञानम भारा क्रियाम विना। कब कहा गया होगा ज्ञान भार बन जाएगा यदि व्यवहार नहीं है। मैं कैसे कहूं संस्कृत प्राचीन भाषा। एक श्लोक अपि जीवन से पाठा। मैं कहता हूं संस्कृत तो जीवन का पाठ है, संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है। हाँ अग्रे। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे संस्कृत के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर सलूजा जी ने कितने प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को हमारे सामने प्रस्तुत किया। अब मैं बताना चाहूँगी कि जो ज्ञान बच्चे भ्रमण के द्वारा सीखते हैं वे सब कुछ पुस्तकों के माध्यम से पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए समय समय पर शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन भी किया जाता है। अभी आप ये देख रहे हैं कि मुटूर गांव, कर्नाटक का एक गांव है मुटूर गांव, जहां पर डॉक्टर, इंजीनियर और छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी संस्कृत में ही वार्तालाप करते हैं। अग्रे। अब मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये कक्षा में जो है हम कुछ गतिविधियाँ कराते हैं छात्रों के स्तर एवं पाठ्यक्रम के अनुसार।
विभिन्न गतिविधियां कराई जाती हैं, जिनके माध्यम से हमारा ये प्रयास रहता है कि उन्हें संस्कृत को सरल से सरल बना करके पारंगत करने का प्रयास उनको किया जाता है और छात्र भी अत्यंत रोचकता के साथ और सहज भाव से इसको आत्मसात करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि एक परिवार का वृक्ष बनाया गया है, तो इसके माध्यम से बच्चों ने परिवार का वृक्ष बनाया है। इसमें अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, अपने माता पिता सभी की इसमें चित्र लगाए हैं और इसके द्वारा वो अपने परिवार के महत्व को भी भली भांति समझ सकते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि साथ साथ हम उनमें इसी प्रकार से नैतिक मूल्यों का भी विकास कर सकें। अग्रे, वैदिक काल अपने आप में एक महत्वपूर्ण एवं सटीक काल माना जाता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि वैदिक घड़ियों का निर्माण किया गया है और बड़ी सरलता से यह हमें वैदिक ज्ञान को हम इसके माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे इसमें ये एक अंक दर्शाया गया है, एक अर्थात आदित्य, आदित्य अर्थात सूर्य, सूर्य जो है एक है। 4 अंक बताता है कि वेद हमारे 4 वेद हैं। 9 अंक 9 ग्रहों को अंकित करता है। नवग्रह जिसको हम बोलते हैं, जब घर में कोई भी पूजा पाठ होता है तो नवग्रह बनाया जाता है, तो ये 9 ग्रह ये जो 9 अंक है ये 9 ग्रहों को इंगित करता है। नेक्स्ट, छात्रों की प्रतिभा को दर्शाने के लिए प्रति मास हम हिंदी और संस्कृत मासिक पत्रिका का निर्माण करते हैं, जिसमें बच्चे अपनी स्वरचित रचनाएं भेजते हैं और बहुत उत्साहित होकर के वो इस हिंदी संस्कृत पत्रिका को आकार देते हैं। श्लोकों के माध्यम से कोई ना कोई अच्छी शिक्षा उन्हें प्राप्त होती है, जो छात्र को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। अभी आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, एक बच्चा तबला बजाता हुआ गीता जयंती के अवसर पर गीता के श्लोकों का गायन किया है। तो इसी तरह से अभी 6ठी क्लास का ही बच्चा है, लेकिन इतनी शुद्ध भाषा में इतने अच्छे तरीके से इसने गीता के श्लोकों को सबके सामने प्रस्तुत किया, जो कि सुनकर के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मधुर था। नेक्स्ट, समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा को दर्शाने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये जो आप बच्चा देख रहे हैं, ये भी 6ठी कक्षा का विद्यार्थी है, जिसने तांडव स्तोत्र प्रस्तुत किया और इतनी सुंदर स्वर में और इतने स्पष्ट शब्दों के माध्यम से कि ये इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और ये 9वीं कक्षा की छात्रा जिसने कि संस्कृत प्रतियोगिता में 2य स्थान प्राप्त किया है। आगे, इसके अतिरिक्त बच्चे स्वयं भी जो हैं संस्कृत के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं। तो ये जो प्रतियोगिता ये जो आप देख रहे हैं, इसमें फेसबुक के माध्यम से इस बच्चे ने इस प्रतियोगिता के संबंध में जाना, उसमें भाग लिया और अपनी मेहनत से इस इंटरनेशनल स्तर की प्रतियोगिता में 3य स्थान प्राप्त किया। ये सब कुछ उसने अपने आप, अपनी रुचि, अपनी जागरूकता के कारण किया। नेक्स्ट, ये जो आप देख रहे हैं श्रद्धा मोहंती, ये हमारे विद्यालय से उत्तीर्ण हुई छात्रा है। इसमें अनेक कलाओं का संगम है। वैसे तो ये विज्ञान की छात्रा होते हुए भी संस्कृत के प्रति इसकी अगाध रुचि थी और इसका मानना था कि संस्कृत के ज्ञान के बिना किसी भी विषय को जानना संभव नहीं है। संस्कृत को आचार विचार के रूप में अपनी कार्यशैली में इसने अपनाया और बहुत ही नृत्य, कला, मतलब हर प्रकार का संगम इस लड़की में देखने को मिलता है। और आज ये लड़की पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन अपनी संस्कृत भाषा को इसने आज भी नहीं छोड़ा है। अग्रे, इस आधुनिक युग में चाहे हम कितनी ही रफ्तार से क्यों ना दौड़ रहे हों, कितनी भी अपनी संस्कृत भाषा को अनदेखा क्यों ना कर रहे हों, लेकिन हमारे जो देह वाक्य, हमारे जो आदर्श वाक्य हैं, वो आज भी संस्कृत में ही विद्यमान है। जैसे कि आप हमारे विद्यालय का आदर्श वाक्य देख रहे हैं, सेवार्थम ज्ञानम, ये भी संस्कृत में ही है। किसी भी भाषा में इन आदर्श वाक्यों का रूपांतरण नहीं किया गया है, जो कि इस बात को प्रमाणित करता है कि संस्कृत सनातन भाषा थी, है और रहेगी। कोई भी भाषा इसका स्थान नहीं ले सकती।